Hi everyone. So welcome to part 3 of the puzzle series which we are doing, right? So we have already done two puzzles, okay? So if you have not watched that, okay, so you can watch after watching this video, obviously, correct? Alright, so now we are discussing George J. Summer puzzles, right? Brain teasers. The book name is Test Your Logic and this is the part 3, okay? This is my brief introduction. You can join the Telegram channel, right? I am posting these puzzles well in hand, okay, before this video actually release, okay. So I have posted the first two puzzles in the Telegram channel, and basically that gives you a beforehand practice, okay. So if you join this channel, then you will get the puzzle before in hand and you can try it out, correct, and then you can watch the video, okay, to see the solutions and all, correct. All right, okay, let's move on. This is puzzle number 3. Now this is slightly difficult than the previous two puzzles which we have done, correct. Just look at this. The puzzle name is the hospital staff. All right, listen to the word carefully. The hospital staff consists of 16 doctors and nurses, including me. So there is a person who is speaking, right? So he is saying that in a hospital, including himself, right, himself or herself, there are 16 doctors and nurses. All right. The following facts apply to the staff members. Whether you include me or not does not make any difference. Now there are 4 facts available: more nurses than doctors, more male doctors than male nurses, more male nurses than female nurses, and at least one female doctor. All right. What is the sex and occupation of the speaker? Now, if you come back, look at this statement. These 4 facts apply to the staff members. I mean, these 4 facts are true about the data. All right. Whether you include me or not, that is the most important point here, right? उस person को include करो या नहीं करो, दोनों cases में all these 4 facts apply. All right. अब ये कैसे फर्क डालेगा उस पर बात करते हैं. All right. Let's try to solve it first of all. Very good confusing puzzle. Okay, chaliye, let's talk about. So we have more nurses and doctors, right? So let's say we have doctors and nurses, in which we have male and female. So make a grid, right? 2 by 2. Now what is saying? More nurses than doctors. This is more than this. Okay. Total number of nurses and doctors are 16. More male doctors than male nurses. More male doctor than male nurses. This is more than this. This data is more than this data, right? More male nurses than female nurses. Male nurses, female nurses. So this data is more than this data. So can I apply this? This is more than this, right? So ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है. Correct. At least one female doctor. This value is at least 1. All right. Now think on this. This value is more than this. Still, nurses are more than doctors. अभी ये value अगर इससे बड़ी है और अभी भी nurses doctors ज़्यादा आ रही हैं. So can I say this value has to be more than this value? Otherwise, suppose आप ऐसे कर दो. Correct. In that case क्या होगा कि ये भी इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, तो doctor will be more than nurses, ना? Which is not the case. Correct. इसका मतलब ये possible नहीं है. Correct. तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? It will be like this. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके दोबारा लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है. सो डॉक्टर, नर्सेस, ये इससे बड़ा है. अब मेल, फीमेल. सो व्हाट वी डिड्यूस सो फार कि ये वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, ये वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए. डैश लगा देता हूँ. एंड व्हाट वी डिड्यूस नाउ कि दिस वैल्यू शुड बी मोर देन दिस वैल्यू. तो कैन आई से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा?
राइट, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर 16 है ना, 16 पर्सन है और ये इससे बड़ा है। कैन आई से ये वैल्यू कम से कम 9 होगी एटलीस्ट, क्योंकि 8 और 8 रखोगे तो इक्वल हो जाएगा, राइट? तो दिस शुड बी मोर देन 8, तो कम से कम 9 तो उसको होना चाहिए। अगर ये 9 लेंगे तो ये 7 आ जाएगा, करेक्ट। उससे ऊपर अगर आप लेगो, लेट्स से आपने 10 ले लिया इसको, तो ये 6 हो जाएगा, करेक्ट। ऐसे चल सकते हैं। नाउ ये वैल्यू एटलीस्ट 1 तो है, ये लास्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है कि कम से कम 1 है ये, है ना। अब सपोज ये 6 वाला केस लेता हूं मैं, इफ दिस इज 1 दिस विल बी 5, करेक्ट। अब अगर ये 5 हो गया तो सोचो कि यहां पर आपको सम 10 बनाना है ना। यहां अगर आप 10 बनाओगे तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि अगर आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है, सो आप क्या ले सकते हो कि ये सम 10 लेने के लिए अगर आप 2 8 लोगे तो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 3 7 लोगे तो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बिकॉज अभी भी वैल्यू कम ही आ रही है, देखो है ना। 4 6 लोगे तो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब अगर मैंने इसको 6 और इसको 10 ले लिया तो ये 1 5 भी अगर मैंने बना देता हूं, क्योंकि इसको मिनिमम लेंगे तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा ना, तभी तो वो लॉजिक फॉलो करेगा कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है मुझे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आप देखो कि यहां पर 10 सम बनाने के लिए ये कंडीशन पॉसिबल नहीं हो पा रही कि ये वैल्यू इससे बड़ी हो जाए, है ना। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। सो कैन आई से कि ये केस आउट है और इसके ऊपर वाले भी आउट है, क्लियर। सो कैन आई से कि डेफिनेटली नर्सेज 9 ही होंगे और डॉक्टर 7 ही होंगे, और कोई चांस ही नहीं है, ठीक। अगेन अगर मैं इसको 1 लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 6, राइट। अब ये हो गया 7 आपका, ठीक है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है और ये 6 है तो ये वैल्यू 5 या उससे कम होगी। 5 लेता हूं अगर तो ये 4 हो जाएगा, बिकॉज सम 9 चाहिए मेरे को। अभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि ये इससे बड़ा है, मतलब दिस इज मोर देन दिस, दिस इज मोर देन दिस, दिस इज मोर देन दिस, वन पॉसिबिलिटी। 5 से कम अगर करते इसको 4 करते तो ये 5 हो जाता, तो ये वाली कंडीशन वॉलिड हो जाती। इसका मतलब ये केस आउट है। कैन आई से दिस इज द ओनली केस वी हैव? 1 फीमेल डॉक्टर, 4 फीमेल नर्स, 5 मेल नर्स, 6 मेल डॉक्टर, दैट इज द ओनली केस विच अप्लाइड हियर। क्लियर? चलिए अब द पॉइंट है ना, मुझे पता लगाना है स्पीकर कौन है, ये बात कौन बता रहा था, है ना, उसका सेक्स क्या है, मतलब इसमें कौन सा बंदा है, कहां लाई करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज दिस ओनली ना, वेदर यू इंक्लूड मी और नॉट, ये सब सही होना चाहिए। अगर तुम मुझे इंक्लूड करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। सपोज वो पर्सन मेल डॉक्टर है तो इंक्लूड करेंगे तो बात सही बन रही है, बट अगर मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा तो ये 6 की जगह क्या हो जाएगा? 5, और अगर ये 5 हो गया तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। इट मीन्स कैन आई से कि वो मेल नर्स, मेल डॉक्टर हो ही नहीं सकता। आई रिपीट इन हिंदी, अगर मैंने मान लिया कि वो बंदा मेल डॉक्टर है तो उसको इंक्लूड करोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है हमारी, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर। बट अगर मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, उसको हटा दूंगा, तो ये हो जाएगा 5 उसको हटाने के बाद, और ये 5 और 5 बराबर हो जाएगा, तो ये जो कंडीशन हमारी थी ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। मतलब वो बंदा मेल डॉक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ये वाला केस गड़बड़ हो रहा है कि मुझे इंक्लूड करो या नहीं करो, ये सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। ठीक है। मेल नर्स हो सकता है क्या? इंक्लूड कर रहे हैं तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, एक्सक्लूड पे ही बात करते हैं अल्टीमेटली, है ना, उससे ही फर्क पड़ेगा। इसको एक्सक्लूड कर दूंगा तो ये 4 हो जाएगा, उस केस में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगेन दिस कंडीशन इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड। क्लियर? ये वो हो नहीं सकता, बिकॉज कम से कम एक, चलो इसको भी ले लेता हूं, अगर एक्सक्लूड करेंगे, अगर मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। बट वी हैव दिस ऑल्सो ना कि एटलीस्ट 1 फीमेल डॉक्टर, और ये वाली बात तब भी सही होनी चाहिए जब उसको एक्सक्लूड किया जाए। उस बंदे को एक्सक्लूड करोगे तो भी तो 1 फीमेल डॉक्टर होना चाहिए ना, मतलब ये भी नहीं हो सकता। क्लियर? क्या बचा हमारे पास? फीमेल नर्स। अब देखो इंक्लूड कर रहा हूं तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, एक्सक्लूड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 3, और इन दैट केस भी ये सेटिस्फाई कर रहा है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर।
1356, मतलब वो पर्सन कौन है? पक्का इस 4 में से एक है. तो हु इज द पर्सन? फीमेल नर्स. The person is a female and the occupation is a nurse. Clear, I guess? Okay. Chaliye, this is the third puzzle we have done. So again, in the next video we will be doing one more puzzle, puzzle number 4. Okay. Keep watching. Keep like the video and do subscribe the channel also. Correct? If you have not done so far. All right. Chaliye. See you then. Bye bye.